A very warm good morning, good afternoon, good evening to each one. So, now we are here to begin with the story 2, which is The Little Match Girl by Hans Christian Andersen. So, let's start without wasting even a second. Okay. So, first, let us read a little bit about Hans Christian Andersen, that who was he, what kind of writer was he, and like all that. So Hans Christian Andersen was a Danish writer. Okay, he was a Danish writer. Though they will not ask you he was a Danish writer or American writer, but still, just for your knowledge, that he was a Danish writer, best known for his fairy tales. So he writes fairy tale stories, means which are imaginative stories and which are not real, which did not actually happen, right? However, his stories are not restricted to children alone and have themes of universal appeal that transcend age and culture. So since he writes fairy tales, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बच्चों के लिए हैं. The theme of the stories appeal to all ages and cultures. Anderson had a very unhappy childhood and much of his stories reflect the sadness dealing with loss and death. तो उसका एक बहुत ही अच्छा चाइल्डहुड नहीं था, खुशियों से भरा उसका कोई चाइल्डहुड नहीं था, बचपन. एंड हिज स्टोरीज रिफ्लेक्ट सैडनेस. उसकी मोस्टली स्टोरीज में दुख ही दिखाया जाता है, जिसमें डेथ होती है, लॉस होता है कुछ ना कुछ, राइट. बिकॉज अगर कोई ज़िंदगी में घटना घटती है तो वो हमारी राइटिंग्स को भी अफेक्ट करेगी, राइट. The Little Match Girl is one such, set around Christmas. So the story is set around Christmas. The story tells of a little girl who was unable to sell her matchsticks, dies of cold and hunger. So basically, that little match girl, she dies. Why? Because of hunger. बहुत भूखी थी, ठीक है, और ठंड भी बहुत थी. So she dies of hunger and cold on the street, even as people are celebrating the birth of the Christ child inside their warm, cozy homes. So this little girl, she was not able to sell the matchsticks and earn even a penny. And the people were celebrating the birth of Jesus Christ, Christ child, right? Inside their warm, cozy homes. But she was dying outside in cold with hunger. The tale is rich in irony, imagery, and symbols, emphasizing the need for compassion for those who have so much less than we do. Means we are here showing कि हमें जो गरीब है, जिसके पास बहुत कम है, बहुत कम रिसोर्सेज हैं, उसको हमें कंपैशन दिखाना चाहिए, राइट. सो द लिटिल मैच गर्ल, यू शुड नो द नेम ऑफ द ऑथर, यू हैव टू लर्न दिस. ओके, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन. इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न बिकॉज ओके. सो इट वॉज बिटरली कोल्ड, मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड थी. बिटरली का मतलब कड़वा नहीं है यहाँ पे, मीन्स इट वॉज वेरी कोल्ड बेसिकली. स्नो वॉज फॉलिंग एंड डार्कनेस वॉज गैदरिंग. बर्फ भारी हो रही थी और अंधेरा हो रहा था, यानी रात का वक्त होने वाला था. फॉर इट वॉज द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, मीन्स 31 December. It was New Year's Eve. It was New Year's Eve. Eve is a day before a special function or a special day. Like New Year's Eve means it was 31st December. In the cold and gloom, a poor little girl walked. So there was a poor little girl walking bareheaded. उसके कोई कैप नहीं थी सिर पे, barefoot, पैरों में चप्पल नहीं थी, through the streets. चप्पल शूज मतलब कुछ भी नहीं था. She had been wearing slippers, it is true, when she left home, but what good were they? उसने स्लीपर्स पहने थे जब वो घर से निकली थी, बट वो किस काम के थे, क्योंकि वो उसकी मम्मा के थे यार, कितने बड़े होंगे फिर. So they had been her mother's, so you can imagine how big they were. The little girl had lost them as she ran across the street to escape from two carriages that were being driven टेरेबली फास्ट. तो जो लिटिल गर्ल थी उसने वो दोनों स्लीपर्स जो उसकी मम्मा के थे वो भी घुमा दिए जब वो भागी स्ट्रीट पर दो कैरेजेस से जो कि बहुत फास्ट, टेरेबली फास्ट दे वर मूविंग. उनसे बचने के लिए शी रैन एंड देन शी लॉस्ट द स्लीपर. वन स्लीपर कुड नॉट बी फाउंड एंड अ बॉय हैड रन ऑफ विद द अदर, सेइंग दैट ही वुड कम इन अ वेरी हैंडी एज अ cradle, CRADLE. This is important part of this, I mean this is important. ओके, क्रैडल. क्रैडल झूला नहीं होता, झुलाने वाला. सम डे व्हेन ही हैड चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन. तो एक तो स्लीपर गुम गया और दूसरा मिला, एक तो गुम गया मिला नहीं, और दूसरा स्लीपर एक बच्चा ले गया, छोटा सा लड़का. कहता कि जब जिस दिन मेरे बच्चे होंगे उनके लिए मैं क्रैडल बनाऊंगा. क्रैडल मतलब झूला, झूलने वाला जो होता है,
राइट, इट्स काइंड ऑफ फनी थिंग कि कब उसके बच्चे होंगे कब, और उसमें भला स्लीपर में वो कैसे, इज इनोसेंट काइंड ऑफ। सो द लिटिल गर्ल वॉकड अबाउट द स्ट्रीट्स, इनोसेंट भी और नॉटी भी है, उसका स्लीपर लेके भाग गया। सो द लिटिल गर्ल वॉकड अबाउट द स्ट्रीट्स ऑन हर नेक्ड फीट विच वर रेड एंड ब्लू विद कोल्ड। सो उसके पैर कैसे हो चुके थे, रेड एंड ब्लू, लाल और नीले से हो जाते हैं ना, नीले क्योंकि खून जम जाता है, रेड क्योंकि ठंड है। In her old apron, she carried a great many matches and she had a packet of them in her hand as well. तो उसके apron में which she was wearing, ये appearance में अगर आ गया तो you can write that she was wearing an apron in which she had carried many matches and some matches were also in her hand. She was bareheaded, barefoot. This you can add in the your if it comes to describe the appearance of that girl, poor little match girl. और वो भी लिख सकते हो कि उसकी माँ मम्मा के स्लीपर्स उसने डाले थे but she lost it, and how she lost this all you can write, okay. Then nobody had bought any from her and no one had given her a single penny all day. किसी ने उससे कुछ नहीं खरीदा मैच स्टिक्स, और ना ही उसको 1 रुपया, मतलब 1 penny दी, सॉरी penny, इट्स अ करेंसी. शी crept along shivering and hungering, मतलब ठंड की वजह से वो कंब रही थी, भूखी थी. द पिक्चर ऑफ मिजरी, ठीक है, पुअर लिटिल थिंग. नाउ द स्नोफ्लेक्स फेल ऑन हर लॉन्ग गोल्डन हेयर. स्नोफ्लेक्स आपको पता ही है, इमोजी भी होता है एक, इमोजीज में देख लेना स्नोफ्लेक्स का इमोजी, अदरवाइज आई विल पुट द इमोजी, सॉरी इमोजी कह रही हूँ, स्नोफ्लेक्स आई विल पुट इन द थंबनेल, डू सी द थंबनेल, ओके. और डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ना, देर आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, राइट. द स्नोफ्लेक्स फेल ऑन हर लॉन्ग गोल्डन हेयर. अपीयरेंस में आप ये भी लिख सकते हो दैट शी हैड लॉन्ग हेयर, और कौन से कलर के हेयर थे, लॉन्ग गोल्डन हेयर. She had long golden hair which curled so prettily about her neck, but she did not think of her appearance. Now lights were shining in every window and there was a glorious smell of roast goose in the street, for this was New Year's Eve and she could not think of anything else. तो न्यू ईयर का ईव था, हर घर में रोस्ट गूज बन रहा था, and there was smell of the roast goose nearly in the every street. She huddled down in a heap in a corner formed by two houses. जैसे दो घर हैं, उनके एक कॉर्नर में वो चली गई जिसे हीप बना रहे थे, जो वन ऑफ विच प्रोजेक्टेड फर्दर आउट इनटू द स्ट्रीट. मतलब एक घर बाहर से को था, एक इधर से था, यहाँ से वो यहाँ पे वो बैठ से गई, राइट, ओके. देन द अदर, सॉरी, projected further out into the street than the other, हाँ जी. But though she tucked her little legs up under her, she felt colder and colder. मतलब वो कट्ठी सी होके बैठ गई, कट्ठा सा होके बैठ जाती है, बट फिर भी उसको ठंड लग रही है. She did not dare to go home for she had sold no matches and earned not a single penny. घर जाने की भाई वो हिम्मत कैसे करे भला, क्योंकि उसने एक भी रुपया नहीं, उसने एक भी पैसा नहीं कमाया. एक, she did not even earn a single penny. She did not sell a matchstick. For she had sold no matches and earned not a single penny. Her father would be sure to beat her, and besides, it was so cold at home, for they had nothing but the roof above them, and the wind whistled through that, even though the largest cracks were stuffed with straws and rags. Her thin hands were almost numb with cold. If only she dared pull just one match from the packet, strike it on the wall, and warm her fingers. So this is very important. क्यों नहीं घर जाना चाहती थी, क्योंकि उसके पापा उसको मारेंगे. और बाकी उनका घर भी क्या था, उसके जो घर में होल्स थे वो भरे हुए थे, किससे भर रखे थे उन्होंने, स्टफ्ड विद स्ट्रॉ एंड रैग्स. रैग्स, फटे पुराने कपड़े एंड स्ट्रॉ के साथ भर रखे थे, और उसमें से भी, छत में से भी विंड जो थी वो आती थी, ठंडी हवा. तो व्हाट काइंड ऑफ अ होम ऑल्सो इट वॉज. So that's why she don't wanted to go home. This paragraph is very important. Then she pulled one out, means she pulled one matchstick out and scratch, right? How it spluttered and burnt. It had a warm bright flame. इसका एक बहुत ही गरम सा ब्राइट फ्लेम था, मतलब वो काफ़ी गरम उसको फील हुआ, रोशनी आई उससे. लाइक अ टाइनी कैंडल व्हेन शी हेल्ड हर हैंड ओवर इट. बट व्हाट अ स्ट्रेंज लाइट इट सीम टू द लिटिल गर्ल एज इफ शी वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ ग्रेट आयरन स्टोव. तो इतनी उसको वार्मथ लगी यार, जब कहते हैं ना डूबते हुए इंसान को तो तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है. तो इट वॉज जस्ट लाइक दैट कि उसको तो उतनी वार्मथ भी बहुत लगी. शी फेल्ट एज इफ इट वॉज अ ग्रेट आयरन स्टोव, एज इफ इट वॉज अ ग्रेट आयरन स्टोव विद पॉलिश्ड ब्रास नॉब्स. इंपॉर्टेंट है ये, ग्रेट आयरन स्टोव उसको लगा जैसे हो विद पॉलिश्ड ब्रास नॉब्स एंड ब्रास ऑर्नामेंट्स. ठीक है, ब्रास की नॉब्स हों, जैसे पॉलिश्ड ब्रास नॉब्स हों उस ग्रेट आयरन स्टोव के, और ब्रास नॉब्स के साथ और क्या हो, ब्रास ऑर्नामेंट्स. Then the fire burned so beautifully and gave out such a lovely warmth. Oh, how wonderful that was! The child had already stretched her feet to warm them too when out went the flame, the stove vanished, and there she sat with a burned match in her hand. अभी उसने अपने पैर भी आगे कर लिए कि मैं पैर भी सेक लेती हूँ, बट तब तक वो बुझ गई थी आग, राइट. Then
She struck another. It burned clearly, and where the light fell upon the wall, the bricks became transparent like gauze. तो जब वो उसकी लाइट मैच स्टिक की, जो उसने दूसरी मैच स्टिक करी, जब वो दीवार पे पड़ी तो द wall became transparent. She could see right into the room where a shining white cloth was spread on the table. It was covered with beautiful china, and in the center of it stood a roast goose stuffed with prunes and apples, steaming deliciously. This is important. तो क्या हुआ, वॉल ट्रांसपेरेंट होगी, राइट, और शी कुड सी नाउ थ्रू द वॉल, और एक टेबल पे एक वाइट कलर का क्लोथ था जिसके ऊपर चाइना पड़ा था, मतलब चाइना डिश वगैरह, और उसके सेंटर में एक रोस्ट गूज था विच वॉज स्टफ्ड विद प्रून्स एंड एप्पल्स, किसके साथ, प्रून्स एंड एप्पल्स, स्टीमिंग डिलिशियसली, मतलब भाप निकल रही थी, एंड वट वॉज इवन मोर वंडरफुल वॉज दैट द गूज हॉप डाउन, गूज मतलब गूज ने छलांग मारी फ्रॉम द डिश, वेंडल्ड अक्रॉस द फ्लोर विद कार्विंग नाइफ एंड फोक इन इट्स बैक, उसकी बैक में क्या था, एक नाइफ थी, एक फोक था, उसके साथ ही उसने छलांग मारी, वेडल स्ट्रेट अप टू द पुअर चाइल्ड, देन आउट वेंट द मैच एंड नथिंग कुड बी सीन बट द थिक कोल्ड वॉल। तो वो क्या कहते हैं, गूज जंप मार के उसकी तरफ आ रहा था, बच्चे की तरफ, बट फिर फ्लेम में मैच जो है उसकी रोशनी बुझ गई, और कुछ नहीं, बस सिर्फ थिक मतलब मोटी कोल्ड वॉल ही दिख रही थी, राइट। देन नेक्स्ट, और ये विजन्स का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि पहले कुछ भी लिख दो, पहले उसको क्रिसमस ट्री दिखा, फिर उसको ग्रेट आयरन स्टोव दिखा विद ब्रास नॉब्स एंड ब्रास ऑर्नामेंट्स, नहीं, पहले क्या दिखा फिर क्या दिखा, प्रॉपर सीक्वेंस, पहले ग्रेट आयरन स्टोव, फिर रोस्ट गूज, फिर अभी आगे पढ़ रहे हैं, ऐसे क्रिसमस ट्री जो है, बट ऐसे सीक्वेंस यू हैव टू रिमेंबर, यू कैन नॉट मिक्स इट अप। She struck another match, and suddenly she was sitting under the most beautiful Christmas tree. It was much larger and much lovelier than that one she had seen last year through the glass doors of the rich merchant's shop house. 1,000 candles lit up the green branches, and gaily colored balls like those in the shop windows looked down upon her. The little girl reached forward with both hands, and out went the match. Then many candles on the Christmas tree rose higher and higher through the air, and she saw that they had now turned into bright stars. One of them fell, streaking the sky with light. तो क्या हुआ, उसने एक और मैच जगाई, और उसने देखा कि वो एक बहुत ही सुंदर क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी हुई है, बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर था, उस ट्री से जो उसने लास्ट ईयर देखा था ग्लास डोर से, जैसे शीशे से देखा था, जो शीशे के दरवाजे थे रिच मर्चेंट के घर पे। 1,000 कैंडल्स लिट अप द ग्रीन ब्रांचेस, उसकी हरी टहनियों को बहुत सारी 1,000 कैंडल्स ऑलमोस्ट लिट कर रही थी, मतलब कैंडल्स लगाई गई थी उसके ग्रीन ब्रांचेस पर, एंड कलर्ड बॉल्स भी, जैसे कि शॉप विंडोज़ में होती हैं, राइट। द लिटिल गर्ल रीच फॉरवर्ड विद बोथ द हैंड्स, फिर वो दोनों हाथों के साथ आगे गई, बट मैच फिर बुझ गई, फिर क्रिसमस ट्री ऊपर ऊपर जाता गया, और क्या देखा उसने कि वो सारे ग्रीन वो क्या कहते हैं, कैंडल्स वगैरह जो भी उस पर थी, लाइट्स, वो सारी स्टार्स बन गई, और एक स्टार टूट गया, तारा टूट गया, जैसे कहते हैं ना, तारा टूट गया विश मांग लो, वैसे। नाउ समवन इज डाइंग, सेड द लिटिल गर्ल, फॉर हर ओल्ड ग्रैंड मदर, द ओनली वन हु हैड लव्ड, who had ever been good to her but who was now dead, had said, whenever a star falls, the soul goes up to the god. उसने कहा कि भाई कोई मर रहा है, क्योंकि उसकी जो दादी जी थे उन्होंने क्या कहा था कि जब भी एक तारा टूटता है तो कोई आत्मा भगवान के पास जाती है, यानी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, a person dies. She struck another match on the wall. Once more there was light, and in the glow stood her old grandmother, oh, so bright and shining, and looked so gentle, kind and loving. तो उसने एक और मैच जगाई क्रिसमस ट्री के बाद, उसको उसकी ग्रैंड मदर दिखी, विच वॉज लुकिंग वेरी काइंड, लविंग, जेंटल, राइट। कैसी दिख रही थी वो, कीवर्ड याद रखो, जेंटल, काइंड एंड लविंग, ठीक है। सो Granny, cried the little girl, oh, take me with you. I know you will disappear when the match is burnt out. You will vanish like the warm stove, the lovely roast goose, and the great glorious Christmas tree. वो कहती कि मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे पता है जब ये मैच बुझ जाएगी तो तुम भी उस ग्रेट आयरन स्टोव, उस लवली रोस्ट गूज और क्रिसमस ट्री की तरह तुम भी चली जाओगी, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाओ, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। देन शी क्विकली स्टक ऑल द रेस्ट ऑफ द मैचेस शी हैड इन द पैकेट, फॉर शी डिड सो वांट टू कीप हर ग्रैंडमदर विद हर। वो चाहती थी कि फ्लेम बुझे ही ना, उसकी ग्रैंडमदर उसके पास रहे, तो जितनी उसके पास मैचेस थी, शी ऑलमोस्ट burned all of them. The matches flared up with such a blaze that it was brighter than broad daylight. दिन के उजाले से भी ज़्यादा रोशनी हो चुकी थी, and her old grandmother had never seemed so beautiful or so stately before. उसकी grandmother उस रोशनी में बहुत सुंदर लग रही थी. She took the little girl in her arms and flew with her up. High up, oh so high, towards glory and joy. उसको joy, खुशियों की तरफ उसकी grandmother अपनी बाहों में लेकर उड़ गई, बहुत ऊपर,
so high towards glory and joy. Now that they knew neither cold nor hunger nor fear, they were both with God. Fear was of her dad, cold ठंड थी, hunger भूखी थी, तो अभी उसको कोई hunger fear और cold से मतलब नहीं था, for they were both with the God, अभी वो God के पास थे, right? Then, बट इन द कोल्ड डॉन, जब सुबह हुई, न्यू ईयर था, सुबह हुई, जब डॉन इज व्हेन, जब भी सूरज नहीं आया होता बट रोशनी हो चुकी होती है, पीपल कैन ईजिली सी। इन द कॉर्नर फॉर्म बाय द टू हाउसेस सैट द लिटिल गर्ल विद रोजी चीक्स। अपीयरेंस इसकी ये वाली भी इंपॉर्टेंट है कि मरने के बाद उसकी क्या अपीयरेंस थी, उसकी चीक्स रोजी थी, मीन्स उसकी पिंक चीक्स हो चुकी थी, एंड स्माइलिंग लिप्स, शी वॉज स्माइलिंग डेड, फ्रोजन टू डेथ ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ओल्ड ईयर, द डॉन ऑफ द न्यू ईयर रोज ऑन द हडल्ड फिगर ऑफ द गर्ल, शी वॉज स्टिल होल्डिंग द मैचेस एंड हाफ अ पैकेट हैड बीन बर्न। तो आधा पैकेट उसने मैचेस का जला दिया था, डेड वो, शी वॉज लाइंग देयर इन द कॉर्नर फॉर्म बाय द टू हाउसेस, शी वॉज एविडेंटली ट्राइंग टू वार्म हर सेल्फ, पीपल सेड, लोगों ने क्या कहा कि इसने आधा पैकेट मैचेस का जला दिया, मे बी ये खुद को गर्म कर रही थी, ठंड बहुत थी ना, बट नो वन न्यू वट ब्यूटिफुल विजन शी हैड सीन एंड इन वट अ ब्लेज ऑफ ग्लोरी शी हैड एंटर्ड with her dear old grandmother into the heavenly joy and gladness of a new year। तो बट लोगों को क्या पता था कि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक बहुत ही अच्छी दुनिया में चली गई है, अपनी ओल्ड ग्रैंड मदर के साथ, इनटू द हेवनली जॉय, हेवन के आनंद में, ग्लैडनेस ऑफ अ न्यू ईयर, राइट? पीपल थॉट कि वो तो ठंड से बचा रही थी, बट शी वेंट विद हर ग्रैंड मदर विद जॉय। So this was all about the story. I hope you understood. If you have any doubt, do let me know. Thank you very much.